Welcome class 11th. Today we are going to start with a new topic that is acceleration. Basically non-uniform motion की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें दो सेगमेंट हम स्टडी कर सकते हैं, when acceleration is constant and when acceleration is also varying. तो acceleration is constant, that is uniformly accelerated motion. When acceleration is not constant, it is varying with time, तो हम उसमें नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम कहते हैं उसको. तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं तो मोशन की, दैट इज हम यहाँ पर बता दें आपको v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. दिस इज फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी a एंड t. उसके बाद s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर is equal to 2as. These are the three equations of motion that you have already studied in 9th class. But by calculus method, we will try to derive these equations over here. So first, let's start our discussion with acceleration. Basically, acceleration is a rate of change of velocity. Rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. हम acceleration को ऐसे भी लिख सकते हैं, let final velocity is v, initial velocity is u, and then time is t. So this is the change in time, change in velocity, and divided by the time in that particular change. तो यहाँ से हम acceleration को बहुत ही simple formula से हम depict करते हैं, ठीक है. And SI units के बारे में सभी को पता है. SI units are meter per second square and this is dimension formula की अगर हम बात करें तो this is LT minus 2. इसकी हमारे पास dimension formula होता है, right? Now basically अब हम ड्राइव करते हैं equations जो हमारा main target है. तो first equation हम यहाँ पर ड्राइव करते हैं that V is equal to U plus AT. How to drive it? By calculus method. By calculus method. It is very easy. See, we know that acceleration is the rate of change of velocity. We have already written. तो acceleration को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, difference in velocity, that is dv with respect to time t. Means change in velocity upon change in time, which is also acceleration. तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. ये आपके पास आया dv is equal to a multiply by dt. On integrating both sides, what we are having, integration of dv, that is equal to integration of a multiply by dt, right? Now देखिए change in velocity, initial velocity u हो सकती है, let it be u, and final velocity हमारे पास v हो सकती है. Got it? This is initial velocity, this is final velocity. इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर होती है. भाई यहाँ dv का वेलोसिटी के लिमिट्स आएंगी, यहाँ dt वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल है, तो टाइम की लिमिट आएंगी. जब इनिशियल वेलोसिटी थी तो टाइम t इज इक्वल टू 0 था. जब वेलोसिटी v है तो टाइम कुछ होगा, लेट इट बी t. यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिखा. dv का इंटीग्रेशन बेटा v होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v, लिमिट्स u से लेकर v, that is equal to a constant. हमने कहा uniformly accelerated motion, तो this a is constant here. उसके बाद हमने लिखा dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt is t, लिमिट 0 to t. तो जब हम इसको पुट करेंगे आपके पास आंसर आएगा a t. अभी इधर हम लिख देते हैं इसको, दिस इज v, अपर लिमिट पहले अपर पुट करें फिर लोअर पुट करें माइनस करके, तो v माइनस u दैट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई अपर, ये टाइम है, इसमें t पुट करें, t पुट कर दिया, 0 पुट करें, माइनस 0 पुट करें, तो आपके पास एक इक्वेशन आई v माइनस u इज इक्वल टू at, implies v इज इक्वल टू u प्लस at. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. Now the second equation, let us see the second equation by calculus method. Equation number 2, and that is s is equal to ut plus half at square. Let us see how to derive it. For this particular to derive this particular relation, we will use as velocity v is
ds by dt, राइट, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, गॉट इट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, सो ds by dt is equal to v, implies ds is equal to v into dt, गॉट इट। तो ds is equal to v into dt हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड v is equal to u plus at, पुट इट ओवर हियर, यहाँ पर हमने इसको पुट किया तो ये बनेगा u plus at, भाई v की जगह हमने पुट कर दिया u plus at मल्टीप्लाई बाई dt, राइट। तो आपके पास आया बेटा ds is equal to u into dt plus at into dt, ठीक है, हमने सेपरेट कर दिया। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोबारा से हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलस मेथड से इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds दैट वुड बी इक्वल टू, देखिएगा u इंटीग्रेशन ऑफ u इनटू dt प्लस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट t into dt, right? Now velocity u is also constant because this is the velocity at time t is equal to 0, time t is equal to 0 and the final time it would be t, तो टाइम की जो लिमिट होगी वो 0 से लेकर t तक हो जाएंगी। यहाँ भी टाइम की लिमिट 0 से लेकर t तक आप यूज कर सकते हैं। और जो डिस्टेंस है, इनिशियली पार्टिकल इज एट रेस्ट so displacement is 0, finally if it has traveled certain distance it is s, ठीक है। तो टाइम t is equal to पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा, से इट इज x। नाउ इसको हम कैसे करेंगे, s, इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास s होगा, इंटीग्रेशन s होगा, 0 से s आपके पास आ गया, ठीक है। और हमने यहाँ पर लिखा u कॉमन ले लिया, dt का इंटीग्रेशन t होगा, अगेन लिमिट 0 to t, एक्सेलरेशन ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ t into dt it is t square by 2, t square by 2, limit 0 to t, got it। Now this is s minus 0, that is u into t minus 0 plus a t square by 2 minus 0, लिमिट जब पुट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। So this would be s is equal to ut plus half a t square, this is your second equation of motion by calculus method। Now let us start with the third one, third equation के लिए by calculus method we are having third equation, equation number 3, b square minus u square is equal to 2as। इसके लिए बेटा हम थोड़ा सा देखिए कैसे करेंगे। हम सबसे पहले क्या लेंगे, a is equal to एक्सेलरेशन a हम क्या लिखते हैं बेटा, dv by dt, तो let us multiply it with ds and divide it by ds, right? और फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि dv और ds को एक साथ रख लेते हैं और ds और dt को एक साथ लिख लेते हैं। दिस इज ds by dt, ये वाला और ये एक साथ हमने लिख दिया, और dv और ds बचेगा तो dv over ds हमने एक साथ लिख दिया। Now ds by dt is velocity, तो इसको हम लिख सकते हैं velocity, this is dv by ds, राइट। एक तरफ आपके पास a है, एक तरफ आपके पास a है, मींस a is equal to v dv by ds। now cross multiplying then आपके पास बनेगा बेटा v into dv that would be equal to a into ds, right, a into ds। now again on integrating both sides, on integrating both sides, what we are having after integration, simple integration is there, integration of v into dv that would be equal to integration of a into ds। इस तरह से हमने यहाँ पर किया, ds is variable, dv is variable, तो velocity is variable, ds is variable, acceleration is constant, uniform motion की आप बात कर रहे हो, velocity हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं initially u, final v, और ds के लिए हम लिख सकते हैं इनिशियली 0 एंड द टाइम आफ्टर जब वेलोसिटी, देखिए जब इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था, ठीक है, तो बेटा हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो यूनिट है वो 0 से लेकर s भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, u to v एंड 0 to s। फाइनल वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट ऐसे, इनिशियल वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 है, इनमें भी 0 0 से भी कर सकते हैं, वो फिर इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आएगा, तो v इंटू डी वी एक्स इंटू डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन v इंटू डी वी वी स्क्वायर बाई टू, तो इंटीग्रेशन v इंटू डी वी का क्या हो गया, v स्क्वायर बाई टू, लिमिट u एंड लिमिट v। उसके बाद बेटा ये एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन क्या बना, s बना, ds का इंटीग्रेशन s बना 0 टू s। पुटिंग द वैल्यूज, लिमिट जब हम इसमें पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी v स्क्वायर बाई टू, v स्क्वायर बाई टू ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, 1/2 कॉमन लेके v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई टू, दैट वुड बी इक्वल टू a s माइनस 0 मींस a इनटू s। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी यहाँ पर आपके पास, विजिबल नॉट विजिबल, यहाँ हम लिख देते हैं इक्वेशन ये बनेगी आपके पास। ठीक है, implies v square minus u square is equal to 2as. This is the third equation using calculus method. But in all these equations, what is constant? Acceleration is constant. यहाँ पर सभी में constant acceleration हमने use किया है। इसका मतलब ये uniformly accelerated मोशन के कॉन्सेप्ट्स में हम इसको अप्लाई करेंगे इन इक्वेशंस को। ठीक है, दिस इज द कैलकुलस डेरिवेशन बाय कैलकुलस मेथड। न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस we will see in next lecture. One more topic is remaining, that is distance, calculation of distances, and a second let us see to that in quick. One more equation that we are going to discuss, the distance traveled by the particle in nth second. Suppose आप 4 सेकंड में आप चलते हैं, 4 सेकंड में आपने ट्रेवल किया, 4 सेकंड में आपने यहाँ तक ट्रेवल किया, और 5 सेकंड में आपने कहाँ तक ट्रेवल किया, 5 सेकंड में आपने यहाँ तक ट्रेवल किया, ये 5 सेकंड में ट्रेवल किया। तो 5th सेकंड में कितना ट्रेवल किया, मान लीजिएगा टोटल डिस्टेंस था ये 30, और पहले सेगमेंट में आपने कितना ट्रेवल किया था, पहले टाइम इंटरवल में 20, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, 10 हो गया। तो 5th में कितना ट्रेवल किया आपने, 10 ट्रेवल किया। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है बेटा, कैसे भी निकाल सकते हैं, मींस distance traveled in nth second। हम इसको ड्राइव भी करेंगे, नोट्स में दिया हुआ है, यू कैन चेक दैट। बाकी बहुत सिंपल सा है, आप SNth निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, SN में से SN-1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। t को n से रिप्लेस कर दीजिए क्योंकि हम टाइम को n से दिखा रहे हैं, तो un प्लस हाफ a n स्क्वायर एंड un माइनस 1 हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो you will reach at the conclusion that SNF would be equal to u प्लस मैं लिख देता हूँ क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको। ठीक है, उसके बाद आसानी रहेगी। आप हम यहाँ पर लिखेंगे un प्लस ut प्लस हाफ एट स्क्वायर a n स्क्वायर माइनस, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना बेटा u n माइनस 1 दैट इज t माइनस 1, t की जगह n है, तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर। ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इन टर्म्स को तो आपके पास जो आंसर आएगा इट वुड बी u प्लस a बाई 2, दिस इज u प्लस a बाई 2। ठीक है, 2n माइनस 1, दिस वुड बी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ द डिस्टेंस इन nth सेकेंड। ये आप याद रखेंगे, इसको हम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स में यूज करेंगे। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, ये a एक्सेलरेशन है, दिस इज एक्सेलरेशन, n इज टाइम इंटरवल, टाइम कौन सा, कहां पर, कौन से सेकंड पे आपको निकालना है, टाइम एट विच आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, वो फॉर्मूले में आप पुट करेंगे और डेफिनेटली आपको आंसर डायरेक्ट मिलेगा। सो दीज आर द 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन दैट वी स्टडी in uniformly accelerated motion.